related to quiz or something like this, right? चले जी शुरू करें. चलो जय माता दी. लेट्स ड्रॉप. चलो राखी एकदम है नोट्स वोट्स के साथ. आई फील सो गुड. चलो So I'm just sharing the screen and then we'll see. Banking ombudsman जो है ना, आपको basically क्या देखना है? Banking ombudsman कौन से areas हैं जिनको redressal करता है complaints. फिर आपको देखना है बैंकिंग ombudsman के पास कौन से केसेस आएंगे. फिर आपको देखना है कितने लाख तक का कंपनसेशन बैंकिंग ombudsman देता है. और फिर आपको देखना है क्या मेंटल लगवाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा देता है क्या बैंकिंग ombudsman, जिसको हम बोलते हैं ना कि मेरे को माल हानि हुई. So now what is माल हानि? Just a second. Just a second. So now I hope this PPT is shared, right? Yes, ma'am. Yes. ये हम सारा पीछे कर चुके हैं. So I'm just okay. Yes. ये जो मोटे से हैं ये. And by the way, this is an organization structure. It's not very important, but yes, you must know. RBI का जो लास्ट तक ही पहले गवर्नर है, फिर डिप्टी गवर्नर्स हैं, फिर EDs हैं, फिर प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर्स हैं, चीफ जनरल मैनेजर्स हैं. जैसे बैंकिंग में हायरार्की होती है, assistant general managers हैं, managers हैं, assistant managers and support staff. This is basically the organization structure. Not very important, but you must know. So now banking, what is RBI? मतलब banking ombudsman. क्या सुना है बैंकिंग ombudsman के बारे में? पहले मैं आपसे सुनना चाहूंगी. What do you know about banking ombudsman? कुछ भी. सारे बैंक. I'm an official person appointed by the RBI to address complaints of customer and bank. Okay, right. Dipanshu, take care. मतलब in case if it's not possible for you to speak, please come on chat only. It's okay. Okay. Right. Take care. हाँ जी, बताइए. Yes. Anyone? Banking. It resolve the query of customers when it is not solved in the bank. They can directly go to the banking ombudsman for their complaint and it will be solved in 3 months. Like ma'am? Okay, so ऐसा कुछ है कि डायरेक्टली बैंकिंग ombudsman के पास मैं जा सकती हूँ? No ma'am. No ma'am. जा सकते हैं. No, when the query is not solved in the bank, then we go to the banking ombudsman. क्या कोई टाइम टैट होता है? Yes, 30 days रहता है. 21 days maybe. वो भी देख लीजिए. हाँ. It's 30 days. It's 30 days, right? So banking ombudsman, beta, come on, mute everyone. It ensures that the concern of various bank officers they are resolved on timely basis. ठीक है? So for that banking ombudsman picture में आया. So एक ही senior official है जो appoint होता है from RBI to redress the customer complaints. Okay, and till now the 15 banking ombudsman has been appointed. Now this figure has changed. Now it's 20 or 21. Right? Yes, it's 21. It's not 15. This is an old PPT. Okay, with their offices, which is located mostly in state capitals, like Delhi we are having, like Jaipur we are having, like Chandigarh we are having. So basically these all big cities. Banking ombudsman is there. Then the role is implemented by RBI to redress the complaints of customers on certain type of banking activities. We'll see to this. This is under a banking ombudsman scheme 2006. Banking ombudsman scheme के तहत it was formulated, right? Or basically it functions under BRA 49. That is Banking Regulation Act 1949. See, आजकल तो आप पता है पहले ही होता था. अभी from last couple of years ago, अब पहले नहीं था, लेकिन अब आजकल e-complaints भी मतलब इट्स इन अ पिक्चर. बिकॉज अब क्या हो गया, फिजिकल तो इतना लोग जाते नहीं है, ऑनलाइन बैंकिंग ज्यादा करते हैं. तो ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को भी प्रीव्यू में कर लिया बैंकिंग ombudsman में. अर्लियर इट वाज नॉट देयर.
See, I'm ex-side job. They're saying something. I'm sorry to hear about your current experience. I think I can help you with this issue as I was going through the same few months back. ये बेचारी कोई दुख की मारी होगी, वो किसे दुखी कर दिया होगा बैंक ने, तो ये मिली सखी बोलती है सी आई कैन हेल्प यू, मैं भी भुगत चुकी हूँ, बैंक वाले बहुत परेशान करते हैं, राइट? शी सेड कि मैंने यार I had visited this bank few days before and I have experienced certain issues, you know. I'm very much tired. People are pathetic in bank. Come on, what to do? मैं वही बता रही हूँ because I work ना. मुझे याद है जब मैं एक बार 15H के इशू में थी तो एक बुजुर्ग सर थे, वो आए, वो बोलते हैं तुमने जो कैलकुलेशन की है ना, according to your calculation you have cut my 1 rupee 20 paisa more. मैंने कहा क्या? He's a super senior citizen above 80. He said 1 rupee 20 paisa something. To see, it's very difficult to, you know, because I can understand, you know, they are very much they are very impatient and they're more they behave like a kid. कहते हैं जैसे जैसे इंसान बुजुर्ग होता है ना वैसे वैसे वो ज्यादा चाइल्डिश हो जाता है. तो मेरे पड़ोस वाले ने बोल दिया कोई नहीं अंकल 1 रुपए भी मैं आपको 2 रुपए दे देता हूँ, मैं क्रेडिट कर देता हूँ आपकी. बस इतना बोलना था, वो इनकी ईगो पर आ गया. He said मैं 2 रुपए, मैं आपकी कंप्लेन करूंगा, आपने मुझे भिखारी समझ रखा है, ये वो ओल्ड. Then I step in, I said अंकल गलती हो गई, एक्चुअली दिस इज अ सिस्टम जनरेटेड एरर है, आपकी कैलकुलेशन जो है वो मैनुअल है एंड दिस इज एज पर सिस्टम. सो आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग दैट यू आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, यू नो, you are handling the problems in far better manner than us. So you know your system calculation है, कंप्यूटर पे फेल है आपकी कैलकुलेशन के आगे. लेकिन अंकल देखिए सर्वर का यही चल रहा है, शायद कुछ कैलकुलेशन में कुछ ये आ रही है. देन ही सेड हाँ बूढ़ा हो गया हूँ, हो सकता है मेरे से कोई गलती हो गई हो, इट्स ओके, लेकिन बोलने का इसको तरीका होता है एंड ऑल दैट. एंड देन आई सेड थैंक गॉड, इट्स वेरी डिफिकल्ट बट यस यू शुड कीप पेशेंस विद देम. ऐसी कंप्लेंट्स भी आती हैं और जो बैंकिंग ombudsman तक जाती हैं, और जहां पर पता है 1-1 रुपए की कंप्लेन होती है और मेंटल अगोनी आती है कि मेरे को जो इस पर मानसिक यातना हुई उस पर मुझे 50,000 चाहिए या 20,000 चाहिए या 10,000 चाहिए. Sort of things. See, step 1. Suppose I went to the bank, okay, for some complaint. My complaint doesn't get solved. I go to operation manager, branch manager, regional head, zonal head. All are not able to solve it. I had not get any response within 30 days. So obviously I haven't full right to go to ombudsman. But directly ombudsman pe you're not allowed to go. Right, you'll have to follow the entire hierarchy. Then only you can't stay forwardly. You don't jump to banking ombudsman. Okay, so the complaint of the banking ombudsman also with this whose jurisdiction the branch or office is there. Like अगर मान लीजिए राजस्थान का कोई ब्रांच है तो obviously जयपुर वाला टैकल करेगा, उसके लिए आप हरियाणा नहीं जा सकते, जो जिसकी अथॉरिटी में आता है. That's the thing. Okay. You'll find this is www.bankingombudsman.rbi.org. A form you just print out and online भी आप submit कर सकते हो, right? क्या आपको लॉस हुआ, you just write आप क्या चाहते हैं and all that. Okay. Then step 4 is banking ombudsman क्या करता है, एग्जामिन करता है केस को, सेटलमेंट कराने की कोशिश करता है थ्रू कंसीलिएशन. कंसीलिएशन मीडिएशन मीन्स जिसको हम बोलते हैं ना एज एन इंटरमीडिएटरी. ओके, सो कि दोनों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है. लेकिन अगर आप डिससैटिस्फाइड है ombudsman से भी, मान लीजिए ombudsman ने आपको नहीं साथ दिया, ठीक है, then you are not okay with the ombudsman decision, you can approach to consumer court. So this is basically a steps. Any problem, Chilla, you may ask. Any problem? Yes. मैम अगर हेलो, हाँ जी बोलो बेटा. मैम अगर बैंकिंग में लाइक कोई कस्टमर सर्विस अगर प्रॉपर नहीं दे पाता तो उसके रिगार्डिंग किसको कंप्लेन करना होता है? अगर बिहेवियरल इश्यूज हैं ऐसा कुछ? यस मैम.
See, then though you have to see for behavioral issues, banking ombudsman is not there, right? There are certain ground of complaints, beta. See, ये हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे. ये केवल इसी के लिए ही आप you can go to the banking ombudsman. Rest all you can report to the branch operation manager, branch manager, or nodal officer is there. Nodal officer आप जा सकते हैं. You know, which when you enter inside the branch premises, there's a board. On that, the respective authorities' phone number is registered. So you can call on that phone and you make register your complaint. Right, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, tell me anybody else? Raki and everyone, Jiten, Yatharth, Dipanshu, जितना मुझे मैं ना ऐसा बोल के नाम याद करने की कोशिश कर रही हूँ. शुभम. Yes, sir. Yes, ma'am. All well? आस्था, अभिजीत. Yes, Okay. ma'am. Okay, मैम great. प्रीवियस स्लाइड में वॉइस क्लियर नहीं आ रही. आस्था मैं बहुत पिटाई कर दूंगी. मैं एक बार जब बोल देती हूँ तो ऑडियो तो है नहीं है. अच्छा आस्था, मुझे लग रहा है कि तू एक बार 2 मिनट आस्क. लेट मी आस्क. क्या सबको आवाज क्लियर नहीं आ रही? 2 मिनट. मेरे को तुम्हारी आवाज नहीं आ रही. राखी, लॉग आउट करके लॉग इन कर बेटा. राखी. ओके मैम. हाँ, तेरी आवाज बेटा लैग हो रही है, टूट रही है. लॉग आउट करके लॉग इन कर. Are you all able to listen me, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद साहब. नेक्स्ट चलते हैं. हाँ, ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट. ये ध्यान रखना, कौन कौन सी ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट में जा सकते हैं, राइट? इंक्लूडिंग इंटरनेट बैंकिंग. मैंने बताया ना, ये अभी किया है इन्होंने इंट्रोड्यूस, बिकॉज अब सब कुछ ई इतना हो गया है. नॉन पेमेंट और इनऑर्डिनेट डिले इन पेमेंट. लाइक होता ना, मान लीजिए मैंने चेक ड्रॉप बॉक्स में मैंने चेक डाला, वो 4 दिन तक उसका अता पता ही नहीं. यू डोंट नो वो लॉस्ट हो गया या फिर वो बहुत लेट क्लियर हुआ एंड ऑल दैट. You know, might be bank ne timely check drop box, bank official has not opened, might be it has been lost due to the negligence of banker, anything, right? Non accept, ये बहुत होता है. जो second point है, ये तो post बहुत ही है. It's the right of the customer to go to the bank, and कई बार check भी होता है, you know. This happened in one of the branch. There's a person from RBI जिसको बोलते हैं ना, जैसे वो होते हैं ना पुलिस वाले, they wear that their, you know, सादी वर्दी without any uniform, and they went मौकाए वारदात पे, and then they caught someone. Same like there's an RBI official, he went with a mutilated note. Mutilated means जो टोन होता है, जिसकी वैल्यूएशन आपको देनी पड़ती है, राइट? जैसे नंबर से फटा हुआ है कि मुझे ये चेंज कराना है, I want to change that, and the teller said in the branch, सर यहाँ नहीं होता. मैम फिर कहाँ पर होगा? सर गो टू एनी पेट्रोल पंप. यहाँ पर तो नहीं होता सर, ये काम नहीं होता, हम नहीं करते इसमें डील. भाई साहब, अगले दिन ही आ जाता है ब्रांच में समझ. उस टाइम में कुछ नहीं करते. यस बेटा. मैम, इज इट लाइक इंस्पेक्शन? यू मे से दैट इट्स अ सरप्राइज विजिट. अगर कोई एक पूरा, यू नो, व्हेन अ पर्सन अप्रोचेस विद अ वन होल बैग वेयर अराउंड 1 lakh coins were there, and they said, ma'am please exchange it. A banker can't deny. Deny कर दिया, कस्टमर चला गया, इट्स ओके. माइट भी उसका दिन था, लेकिन कंप्लेन हो गई तो उसका दिन गया. सो यू कांट म्यूटिलेट इट. सोइल्ड नोट आपको वैल्यूएशन करना होता है. हो सकता है 100 रुपी का वैल्यूएशन आए 70, तो उसको मैं वैल्यूएट करके आई विल गिव अ 70 रुपी टू द कस्टमर, और उसका अलग से पूरा प्रोसीजर है. बट दिस यू मस्ट नो दैट, right? Then non-acceptance without small cause, you know, small denomination notes, 1 रुपया सिक्का, 2 रुपए सिक्का. Okay, you're giving all, you know, in a jute pack, you are giving 5 rupees coin, and then you said, मुझे change करके दो. Everything the bank has to do, right? Okay. See, third, coins. Coins भी अगर कोई change करने के लिए कहता है, ठीक है, और कई बार होता है, कई बार समटाइम्स ऑफ, यू नो, इलीगल प्रैक्टिस, इफ यू गेट इन कि हमें, मैं कर दूंगा चेंज, इफ यू गेट मी दिस मच ऑफ कमीशन एंड ऑल दैट, नॉट अलाउड बॉस. डिले इन पेमेंट ऑफ इनवर्ड रेमिटेंसेस, ठीक है, माइट भी वो डिले प्रोसेस की वजह से हुआ, सिस्टम की वजह से हुआ हो, देन लेटर ऑन द बैंकिंग ombudsman विल सी. बट इट्स अ राइट ऑफ द कस्टमर इफ यू हैव दिस डिले, बिकॉज उस डिले की वजह से आपको नुकसान हो सकता है. कैसे हो सकता है नुकसान? कैन एनीबडी टेल मी? फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है. कम ऑन, I'm talking about this. First, second, third, fourth.
रेमिटेंस में क्या है? दिस इज सबसे बड़ा फैक्टर। टेल मी। मैम टेक्निकल इशू की वजह से। नहीं, बायर को क्या नुकसान हो सकता है और फायदा भी हो सकता है क्या? मैम एक बार आप क्वेश्चन रिपीट कर देंगे प्लीज? Saying that suppose in the case of remittance, what the customer will have loss if it got delayed? Might be it's a loss or a profit. क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? Ma'am, there may be various issues, ma'am. If someone remitting to their parents, they could not purchase something, or they have given order of something, or machinery. In Right. that case, This it will is get cancelled. very मतलब just जो task था उसके लिए नहीं हुआ. Okay, right? And the another cause is that when we talk about a foreign remittance, we'll always talk about the cross currency conversion, right? डॉलर से रुपी से डॉलर. हो सकता है आपके डिले के चक्कर में रेट्स में नुकसान हो जाए because rates are volatile. I'm not talking about forward या फिर आपने फ्यूचर ऑप्शन ले लिया है तो ठीक है. मैं आपको नॉर्मल बात बता रही हूँ. नॉर्मल मेरे को बोला कि मैंने एक रेमिटेंस रेस किया कि ठीक है, और मान लीजिए मैंने बोला ठीक है जो रेट होगी वो देखी जाएगी. मैंने पहले से प्री बुक नहीं लिया, ठीक है आप सेटल कर दीजिए. आपको कर देना था, कल आपने परसों सेटल किया, इसमें डॉलर बढ़ गया 1 रुपी या 2 रुपी. इट इज योर फॉल्ट. और कहने की बजाय वो $1 नहीं होता, $1 बढ़ा, तो $1 का मतलब सीधा सीधा 70 रुपए रफली. So it's a loss to the customer. It's a big financial loss to the customer. Right? I hope you're getting this, what I'm trying to say. Yes, ma'am. Right? Yes, ma'am. Okay. So that is remittances में बड़े लॉस होते हैं. मैंने आपको बताया ही था. मैं 18,000 का फटका लगाया था अपने आप को ही. I hope I have told you this. Then when I did buy की जगह मैंने सेल कर दिया था. आराम से बैठे हैं जी, शाम हो गई, IBR अटक गई, क्या हो गया क्या है. मैं पता है मैं ही बोल रही. I was saying to my colleague, यार ये कौन पागल लोग हैं, you know, what about these silly people, ये IBR में अटका देते हैं ट्रांजैक्शन. okay, come on, मैंने कहा निकाल यार किसकी सोल आईडी है, कौन है. उसने बोला यार ये एम्प्लॉय आईडी तो तेरी है. And then I said, मैंने कहा बॉस आज तो गड़बड़ हो गई आज एक ट्रांजैक्शन. मैडम अपना मजे से बैठे हैं, बाइंग को सेलिंग करके बस 18,000 सीधा नीचे. सो ऐसे भी नुकसान होते हैं. कोई बात नहीं, बड़े दिल के थे. अपन ने बोला 9,000 तू मिला भाई, 9,000 मैं मिलाती हूँ, इट्स ओके. 18 हो जाएंगे इसी के अंदर. सो आई हैव पेड, बट ठीक है उतना कमाया भी है तो इट्स ओके. सो सी आई एम टेलिंग यू, दीज ऑल स्मॉल नेग्लिजेंस विल कॉस्ट यू. इट विल कॉस्ट यू. You know, you'll get this. HDFC तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्केरी बैंक है. मेरा तो फिर भी गरीब बहुत अच्छा बैंक था तो ठीक है. वो तो एकदम वार्निंग लेटर्स इशू करता है. 3 वार्निंग के बाद तो जयराम जी की. मैम इवन पोस्ट ऑफिस में भी ये होता है. Like it happened with my father also one time. Like he had to deposit nearly some 95,000. So ऐसे हुआ था कि वो जो लिस्ट होता है ना, लिस्ट के हिसाब से वो पे करना होता है, मतलब डिपॉजिट करना होता है. तो फिर उसमें से एक लिस्ट क्या हुआ कि वो मतलब ऐसे रिजेक्ट हो गया. तो फिर वो क्या किए, वो जो 20,000 वो लिस्ट का था वो लोग अपने पास ही रख दे और हमें बता दिए कि नहीं मतलब ये आपका मतलब ये एक्सेप्ट हो गया है करके वो लोग ले गए उसको. फिर 15 दिन बाद वो पैसा रिफंड हुआ. ऐसे बार करते हैं मतलब ये लोग. ऐसा होता है. हमने तो LIC के खाते में डालना था, दूसरी LIC में चला गया था. 1 करोड़ का गलत ट्रांजेक्शन, 1 करोड़ का खेलते. वो शुक्र है LIC किसी और ब्रांच में जाना था, LIC किसी और में चला गया, तो इट्स ओके, थैंक गॉड. मैम यस राखी. बट ये अगर किसी के अकाउंट में चला जाता है तो फिर वो कैंडिडेट तो अपना फिर वो ट्रांसफर कर देता है ना मैम. हाँ तो फिर तो बड़ी ऐश तुम्हारी, तुम भरो उसकी ऐश. नहीं मैम, जैसे कि मेरे पापा के अकाउंट में एक बार 60,000 रुपए आ गया था, तो फिर मेरे पापा निकाल कर बैंकर को दे दिया, बोले आप. तो आपके पापा थे ना, वो हर तरह के इंसान है ना राखी. अच्छा, हर तरह के इंसान है ना. मेरे को भी 2 लाख रुपए 4 लाख का पेमेंट था, मैंने बताया था ना मुनीम जी. 2 लाख का पेमेंट था, 4 लाख दे दिया अपन ने. तो राजे अपना थोड़ी पैसा है, अपन को तो बाद में पता चलता है.
वो अपन कॉल कर रहे हैं और काटी जा रही, उसको मैं काटी जा रही लंच के अंदर, है ना, आराम से। यार क्या यार दुखी मार रखा है इन्होंने। मेरे को लगा पेमेंट के लिए बोल रहा होगा। उस टाइम पर नोकिया 1100 वाला फोन था, तो उनका वो आया, वो वाला फोन था जो ऊपर से आप नीचे फेंकेंगे वो 3 टुकड़ों में हो जाएगा, फिर आप दोबारा से करेंगे। एंड्रॉइड फोन नहीं थे उस समय, वो फोन्स बड़े अच्छे थे जिसमें वो सांप सीढ़ी वाला वो गेम चलता था। अमेजिंग फोन्स। सो वी यूज्ड टू हैव। देन आई सेड, ही सेड अर्जी। मैंने कहा अर्जी क्या होता है? वो इंग्लिश तंग में था उनका, मुनीम जी का हाथ। एंड देन ही सेड, मैंने कहा यार अर्जी क्या होता है? फिर मैं फोन किया, मैंने कहा क्या अर्जी? बोलते मैडम अर्जेंट है। मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा चैन लेने दिया करो। चैन शाम को आपको नहीं होगा। मैंने कहा क्या हो गया? व्हाट हैपन? देखो अपना गले में, वो गला ही यूज्ड टू से, यू नो, मुनीम लोग। मैंने कहा क्या हो गया, आप क्यों? मैंने कहा दिमाग खा रहे हो। एंड देन ही सेड, मैडम 2 लाख का पेमेंट था, 4 लाख दे दिया आपने मेरे को। एंड देन आई सेड, मैंने कहा ओह गॉड। और फिर मैं उनको कॉल लगाए जा रही हूँ। मैंने कहा उनको 25-30 गाड़ी चलान देगी, नहीं चलान देगी। ही इज फ्रॉम हरियाणा एक्चुअली। और फिर देन उन्होंने अपनी स्कूटी पार्क की और मैं भारी, मैंने कहा भाई टेलर के भारी सारी। मैंने कहा भैया अभी रुक जाओ, अभी कोई मत दो, आन दो उनको। वो लेकर आए, उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए दिए। एंड देन आई सेड, मैंने कहा जबकि ये तब हुआ जब मैं 50,000 रुपए की ऑलरेडी अपने आप को चोट कर चुकी थी। उसके बाद की बात है ये। ठीक है, हो गई गड़बड़, बट ऐसे लोग भी होते हैं। ले जाओ तो बस, फिर तो आपके पास क्या है? जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है। मैम अगर किसी के अकाउंट में चला जाए, वो ना, अगर वो पैसा ट्रांजेक्शन ना करे मैम, तो फिर तो जो बैंकर ट्रांजेक्शन किया उसको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। हाँ वो तो देना ही पड़ेगा मैम। बट एक न्यूज आई थी उसमें, तो मतलब उस एक इंसान को 15 लाख उसके अकाउंट में आ गए थे। तो फिर उस बैंक वालों ने उसके ऊपर केस कर दिया कि तुम वो पैसे वापस करो। केस भी कर देते हैं ऐसे तो। बड़े ट्रांजेक्शंस होते हैं, हमें को बताओ। अब मान लो 10 लाख 15 लाख 20 लाख का हो गया, तो अगला आदमी कहाँ से लाएगा? तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, डेबिट फीस भी लगा देते हैं उसके खातों में कि वो निकाल ना पाए। एकदम से डेबिट फीस लगा दी बैंक में, मतलब जैसे ही गलती हुई डेबिट फीस लगा दी, जब तक वो निकाल ना दे। निकाल देगा तो फिर उसके अगेंस्ट लिटिगेशन भी होते हैं बड़े अमाउंट में। छोटे मोटे में तो हम ठीक है। ऐसे तो हम लोग जोधपुर तक गए थे, 10 लाख की क्लियरिंग गलत हो गई थी। कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता था। मैम डेबिट फीस क्या होता है? डेबिट फीस का मतलब होता है कि वो निकाल नहीं सकता, कुछ आ सकता है बस खाते में। क्रेडिट्स हो सकते हैं, डेबिट नहीं हो सकता। जस्ट लाइक अ फ्रीज। यस, जस्ट लाइक अ फ्रीज। क्रेडिट फीस नहीं लगाते। अभी रिसेंटली एक स्टोरी आ रही थी, बिहार में किसी बच्चे के अकाउंट में चला गया था 9 लाख के समथिंग, मतलब बिहार सरकार का 9 करोड़ समथिंग। हाँ 9 करोड़ के समथिंग था। मतलब बिहार सरकार, ये पोशाक राशि वगैरह नहीं होता है, वगैरह का होता होगा पता नहीं, लेकिन ऐसा आया था। हाँ तो ठीक है बेटा, मेरे को ऐसा लगता है बैंकर भगवान तो नहीं है ना, गलती तो होती है। मैं जब हो गई थी उसके बाद तो मैं हर बार बोलती हूँ तो इट्स ओके, हो गई, इट्स ओके। मैम ये तुरंत हो जाता है, ट्रांजैक्शन नंबर और बैंक का जो मैनेजर होता है वो सिर्फ जिस ब्रांच में आता है उस ब्रांच को मेल कर दे अगर, तो ये तुरंत 10 मिनट के अंदर उसका अकाउंट फ्रीज होके, हाँ बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। बिल्कुल ऐसे में बताओ, बैंक में भाईचारा बहुत होता है, बहुत भाईचारा होता है। आई एम टेलिंग यू, एक बार हम लोग जब वी वर इन कोटा ब्रांच ना, तो हमारे बहुत सारे मोबाइल फोन चोरी हो रहे थे और रोज चोरी। मैंने कहा भाई साहब हो क्या रहा है? फिर हमें लगा 1-2 कस्टमर पे शक हुआ, तो फिर उसके बाद सारे वहां पर बॉयज बहुत अग्रेसिव थे। पेंट्री पे ले जाकर जो उसकी मार कुटाई की थी मुझे आज भी याद है। इट्स लाइक अ फैमिली, क्योंकि आप यहाँ पर 10 घंटे 12 घंटे 13 घंटे रहते हैं ना, तो ये आपका लॉस नहीं होता, वो आपकी टीम का लॉस होता है। यू आर नॉट ऑल अलोन। मैंने जितने टाइम झेला है ना, people are there to stand by with me. इसलिए banks are the very good place to work in. And obviously it depends upon your chemistry also. But yes, it's a good place of learning also. Alright. So पता नहीं, I thoroughly enjoyed my working. Even I have friends right now also. But yes, it's okay. और ये अभी नहीं है, टेलर से होता है गलती, हमेशा होता है। आप किसी से नकली नोट ले लेते हैं, वो आपको नहीं आया, मान लीजिए कई बार वो आपकी गलती होती है। लाइक कैश का प्रोसीजर होता है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू विल हैव टू चेक अंडर द यूवी, दैट इज अ अल्ट्रा वायलेट लैम्प। जैसे एक लैम्प होता है उसमें ब्लू कलर का एंड ऑल दैट, देन यू विल हैव टू चेक अंडर। बट मैम सभी नोट्स को तो ऐसे चेक नहीं कर सकते हैं ना, टाइम थोड़ी ना होगा। नहीं, तो बड़े जो होते हैं ना, जैसे 10 लाख के ऊपर का डिनोमिनेशन होता है, ठीक है, मान लीजिए 100 के आ गए, बंडल आ गए 10,
तो ऑब्वियसली सब नहीं चेक करोगे, तो उसके अंदर यू जस्ट टेक द ऑल द पैकेट्स, ठीक है, कैमरे के सामने रखोगे, यू पैक इट इन द फ्रंट ऑफ द कस्टमर ओनली, ठीक है, और वो एज इट इज पैकेट भेज दोगे। फिर मान लीजिए कोई उसपे कुछ आता है तो वो आपके नहीं, उस अकाउंट से कटेगा। और कस्टमर के एवज में हमारे पास जब वो पैसा खुलता है करेंसी चेस्ट में ना, तो ऑलरेडी दिखा देते हैं ऐसे पॉलिथिन, सी मान लीजिए राज एंड प्राइवेट लिमिटेड सपोज, तो वैसे सामने ऐसे शो कर देते हैं और फिर वो खोलते हैं उसके सामने एंड देन दे सेड, ऐसे दिखा देते हैं कि भैया तुम्हारा ही पैसा है। फिर वो टेलर का नहीं है, वो उस अकाउंट से डेबिट हो जाता है। So everything is having evidence, everything is having proof, right? वरना तो दिमाग खराब हो जाए। आज ही मैं ब्रांच, my husband was telling me, यार मैं एक ब्रांच में गया, मैंने कहा यार तुमने लंच नहीं किया अभी तक, एंड देन ही सेड नहीं यार मैं ब्रांच में गया, 5.5 करोड़ का कैश आ रखा था लड़की पर इंडसइंड बैंक का। देन आई सेड मैंने कहा 5.5 करोड़ मर जाएगी, बोलती नहीं, हार्डली 15 मिनट्स 10 मिनट्स। मैं ब्रांच हेड को यही बोल रहा था कि भैया ऐसे पूरा सही चल रहा है ना, एंड देन ही सेड बस आंख से करवाना, क्योंकि सीनियर ब्रांच मैनेजर्स की मतलब बॉम्बे से क्या अमिताभ जो है, कौन है अमिताभ, एक्सिस में कौन है अमिताभ? अमिताभ कांत आप बात कर रहे हैं? नहीं, हु इज एमडी एक्सिस? Come on, this is not accepted, my boys and girls. Who is the MD? Come on, search and tell me. चौधरी साहब, tell me, फटाफट बताओ। मैम रिपीट क्वेश्चन। मैम अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी, तो इनके अब विजिट्स होने लग गए। He's coming to जयपुर और राजस्थान। So now my husband is also busy in complaining. वो आते हैं ना, बड़े लोग आते हैं तो एकदम डेंटिंग पेंटिंग हो जाती है, पार्लर हो जाता है, बिल्कुल ब्रांचेस चमक जाती हैं। So he was sharing me that instance. यार ये लड़की आई है, अभी नई तो आई है, कैंपस प्लेसमेंट हुआ है, एंड 5.5 करोड़ का। मैंने बोला कैसे करेगी, तो देन he said कि नहीं सर कर लेगी, आते आते आएगा। तो ऐसा भी होता है, बट इट्स ओके। But yes, see, coins, okay, and then ये हो गया था non adherence to prescribed working hours। ये सबसे ज्यादा आरटीजीएस में होता है। आप चले जाइए सरकारी बैंकों में, चले जाइए, सैटरडे को बोल देंगे 12 बजे के बाद नहीं होता। इफ द कस्टमर, तो गरीब कस्टमर, ठीक है साहब मंडे को कर देना। हो कोई जागरूक कस्टमर, कैसे नहीं होता? टाइमिंग इज फ्रॉम 9 to 2, 9 to 3, सैटरडे 9 to 3। सो जागो ग्राहक जागो वाला सवाल है, राइट? मैम मेरे साथ एक बार ये एसबीआई में हुआ था। हाँ, ऐसा बहुत होता है एसबीआई में। मैंने एक ही बात उसको बोला कि एक काम करो कि मैं, और सही में मैं उस बैंक का आई थिंक जिस दिन बैंक ओपनिंग हुआ था उस दिन मैंने ये अपना अकाउंट ओपनिंग करवाया था। मैंने बोला 4 साल हो गए, मेरा खाता ही क्लोज कर दो। 2 मिनट्स नहीं लगा, वो सारा काम कर दिया मैंने। ऐसा होता है, यू शुड बी और नहीं, मैं ये नहीं बोलती मैम, ऐसे होता है क्या एसबीआई में जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, सबसे अगर ये पब्लिक सेक्टर में बैंक में सबसे बेकार बैंक एसबीआई ही होता है। मतलब महाराजा की तरह वो लोग काम करते हैं। महाराजा भी होते हैं, महारानियां भी होती हैं, है? यस तो मेरे साथ तो मेरे अभी एसबीआई के 1-2 बार, खैर अपना तो रेपो भी अलग है। तो मैम गलती उनका नहीं है, गलती उनके नॉलेज का है। 12th पास करते हैं, पीओ निकाल लेते हैं, बैठ जाते हैं ना। पीडी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही है। क्योंकि मैंने बॉस को, मेरा एसबीआई में करंट अकाउंट भी है, सेविंग अकाउंट भी है, मेरा डेली कहाँ जाने लगे। मैं देखता हूँ ना उन लोगों को, वो उन केस में जिसमें SC ST वाले होते हैं ना मैम, तो वो उनको उस लेवल पे वो कर देते हैं उनको। तो ये राइट है, ये तो वो 100 में से 2 मिलेंगे, बाकी 98% मैंने वही देखा है। टेलिंग यू देयर इज एन, कहते हैं मैं जब एक रूरल एरिया के अंदर, जहाँ पर हम लोग का वो मतलब जयपुर से थोड़ा आगे ना, वहाँ पर कोई अकाउंट क्लियरिंग अकाउंट था, सब बोलते थे बहुत बेकार ब्रांच है, बहुत बेकार ब्रांच। अपन ने केवल 2 बार चाय पी है उस ब्रांच में, 30 बार से ऐसे काम होता है इससे एकदम बढ़िया से। सो काम करवाने का भी एक तरीका होता है जो मुझे लगता है, इट इज विद कस्टमर्स ऑल्सो, इट इज विद एम्प्लॉयज ऑल्सो, राइट? सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यू दैट आप ये सब नॉलेज भी कर लोगे, इफ यू डोंट नो हाउ टू मेंटेन अ पीआर, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। आप सामने वाले से बात कर रहे हो, उसे पता नहीं चलना चाहिए समय कब बीत गया।
मैम एक बात और है ना मैम, क्योंकि 50% तो डायरेक्ट रिजर्वेशन से ही आके पास हो जा रहे हैं, तो वो पीओ भी बन जाते हैं, मतलब वो भी बन जाते हैं, बैंक मैनेजर भी बन जाते हैं, लेकिन उनको पता कुछ नहीं होता। ऐसे ही मेरे साथ एक एसबीआई बैंक में हुआ था, इसमें वो भाई मैनेजर थे। इसमें रिजर्वेशन का कोई गलती नहीं है, इसमें गलती नॉलेज का है। हाँ तो अरे यार, नॉलेज कट ऑफ ही कम रहेगा तो मैम नॉलेज क्या करेगी उसमें, तो ऐसा आपको नहीं एग्जाम भाई, नॉलेज नहीं हो ऐसे जाएगा। मैंने जनरल वाले को वाली तरह सुना है भाई, ऐसा बात नहीं। मैंने चलो चलो जनरल चलो वाले को सुना है, और जो एस सी ऐसा ऐसा राइट चलो चलो, मेरा तो हुआ ही नहीं, मैं तो एप्टीट्यूड ही नहीं क्लियर कर पाई। इट्स ओके, इसलिए मैं कभी नहीं बोलती। अपने अंदर तो इतना कैलिबर ही नहीं था कि एप्टीट्यूड एक ही बार दिया था एसबीआई का, हुआ ही नहीं। मैम एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम ये है ना कि जो चीज चाहिए होती है ना, जो रिक्वायर्ड होती है नॉलेज, मैम वो नहीं पूछते, सिर्फ रीजनिंग एप्टीट्यूड ये सब चीजें पूछते हैं। नहीं, मैं अक्सर बोलती हूँ कि है ना यार, इनको क्या करना कि मेरी आंटी की चाची का बेटा मेरे साथ क्या उसका रिलेशनशिप है, Exactly, मैम। इस पे है ना मैंने, इसमें बैंक की क्या नॉलेज आ जाएगी? ये मेरा भी मैम, क्वेश्चन यही होता प्रॉब्लम है। है, ये उनको मैम पता मेरा नहीं एक ज्यादा बार से ज्यादा चीजें। मैम बैंक का तो एक भी सवाल नहीं होता। मैम ऐसा ये निजी मतलब पर्सनल लाइफ में ये सब काम आता है कि सिटिंग अरेंजमेंट का, जैसे बैंकिंग वगैरह क्वेश्चन होता है कि HC के बगल में बैठा था भाई, तो मैम बैठा ऐसे मैम बैठा एक्चुअली था तो क्या मैम रीजनिंग तो ऐसे देंगे जैसे कि बस पूछो मत। मैम So एक्चुअली I'm telling you, if I'll tell you about the private sector banks, ना ऐसा कुछ नहीं होता. They have a psychometric test. They'll have in some. If they go to the campus, they have a GD. Any good GD, like they'll tell you about, you know. अभी मान लीजिए नायका बहुत चल रहा है, अभी नायका बहुत ज्यादा, you know, उनकी जर्नी, नायका के IPOs, ये सब डिस्कस हो रहे हैं. ओके, ये आ जाएगा कि नायका की जो लेडी है, उसने IIM से अहमदाबाद से एकदम आया. You must be knowledge, okay, knowledgeable आप होने चाहिए. 2500 करोड़ का आई थिंक यस, आप सोचो वो पहले बैंकर थी, वो 8 साल इन्वेस्टमेंट बैंकर रही है, उसका बेटा इन्वेस्टमेंट बैंकर था, उसने ऑफलाइन स्टोर्स का सीईओ बन गया नायका में. द लेडी जर्नी इज मार्वलस. सो वो सब पूछते हैं, यू नो, बोलने का पूछते हैं. तभी मैं बोलती थी जब मैं थी कि मैं सरकारी में नहीं हो सकता मेरा बॉस कभी. मैम हाँ एक जी. बात है ना मैम जो एनालिटिकल वाले क्वेश्चन पूछते हैं ना, एप्टीट्यूड रीजनिंग हो गया, तो वो तो प्रीलिम्स में ही छट जाते हैं बच्चे। उसके बाद जो करंट अफेयर्स होती है वो बैंकिंग रिलेटेड ही होती है, तो जो नॉलेज उधर से मिलती है बैंक। हाँ, वहां से आते हैं, राइट. मैं बोल रही हूँ ना, मैं तो खुद में एप्टीट्यूड में छट गई थी, बट आई एम हैप्पी. आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स इन लाइफ कि मेरा एसबीआई में नहीं हुआ. मैं देखो कितनी अच्छी जगह. आई एम डूइंग द जॉब व्हिच इन जो मेरे को हमेशा से बहुत पैशनेट था, टू टीच, टू से, टू टेक लेक्चर्स एंड ऑल दैट. So it's okay. आप तो ये देखिए मैम, जितना स्कोर किया था 1.75, उससे कम में, उससे आधे में SC/ST वाले निकाल लिए थे पीओ. इट्स ओके, यथार्थ कृप नहीं करना चाहिए. मेरे को हमेशा लगता है इफ यू डोंट हैव दैट अपॉर्चुनिटी, ऊपर वाले ने कोई नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी सी प्लान कर रखी है, राइट. आई ऑलवेज से दिस टू माय स्टूडेंट्स, सो वेट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, और वो आएगी, राइट. वो जरूर आएगी. आगे चलते हैं फटाफट. ओके, then refusal to issue or delay in issuing or failure to service. okay, मतलब कुछ भी आपने सर्व नहीं किया. forced closure of deposits account without due notice, without sufficient note. आपने जबरदस्ती, कई बार होता है ना, आपने खाता बंद कर दिया without any notice, without any the customer consent and all that. ठीक है, या फिर टाइमली खाता बंद नहीं किया and all that. oh, match the correct functions of RBI with their. हाँ जी, foreign exchange management, फटाफट बताओ, मैच करो. मैम facilitate external trade में. Okay, currency issuer. Provide currency notes and coins. Okay, monetary authority. शाबाश, monetary authority. Protects investor interest and provide economic and cost-effective banking. So what is developmental role? I think first all over maintaining price. Yes ma'am, maintaining price stability. किसमें? developmental role में? No ma'am, no. Second one, monetary में. Monetary. Yes. And development is promotional functions to support national banking. Yes ma'am, yes ma'am. Okay, and then the rest is, last one is regulatory. Let's see. हमने यही बोला था, यही बोला था, यही बोला था, जो आपने बाद में चेंज कर लिया. रिलेटेड फंक्शंस, ओके, ये रह गया था, वो हमारा लास्ट में बचा था. डेवलपमेंट फंक्शंस में हमने यही बोला था, और रेगुलेटरी में भी हमने यही बोला था. सो इट्स वंडरफुल. अरे वाह, तो ये तो खत्म हो गया. सो विल हैव सम
We'll see some video also. और मेंटल अगॉनी पर 8 लाख तक का कंपनसेशन है, ध्यान रखिए. 1 लाख, ओके, एंड 20 लाख मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम आप अमाउंट फाइल कर सकते हैं बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन. 20 लाख के ऊपर नहीं, 20 लाख तक का ग्रीवियंस ये नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Yes, Yuvraj, you want to ask or share something, beta? Ma'am, please repeat out. Ma'am, Yuvraj Singh here, and I'm from JCRC University. Yes, beta. I just want to say you are discussing about State Bank of India. So, for your information, I'm a clerical in the State Bank of India. अरे wow, great. So, मैं तो नहीं थी, मैं तो भैया मैं तो क्लियर ही नहीं कर पाती स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. भाई मैं तो एप्टीट्यूड में निकाल दिया. तुमने एप्टीट्यूड कैसे निकाल लिया? मेरे तो आज तक ही नहीं निकला. आपका एग्जाम कब था आपका? मेरा एग्जाम था 2006 में. 2006 में मैम. I done my I cleared my exam in 2016 and 2017 I joined that. अरे वाव. मैं or in my time ma'am, there is no aptitude test. There is a single exam and a single interview only. And after that, I was getting this job after 12th only. There is a clerical post. There is a clerical post in 2016 lastly that they just need the qualification 12 pass for the clerical cadre. And I done that. After that 2016, the clerical will be on graduation. अरे वाह. So now you are associated with SBI? Yes ma'am, presently I'm associated with SBI. With branch? युवराज मेरे पे बहुत सारे काम है SBI के. अब मैं युवराज को छोड़ूंगी नहीं. कौन सी ब्रांच पे है बेटा? मैम अभी I just take the relief from LHO, local head office SBI जयपुर. अच्छा. मैंने वहाँ से रिलीव होके 1.6 years की मुझे छुट्टी मिली थी MBA के लिए. तो 2016 से पहले जो लगे हुए हैं उनको यूजी और पीजी के लिए छुट्टी मिल सकती थी, या तो यूजी या फिर पीजी. तो आई डिडंट टेक लीव फॉर यूजी, आई जस्ट टेक लीव फॉर पीजी. एंड मैं पढ़ाई में बहुत होशियार था बचपन से, लेकिन जब से नौकरी लगी ना उसके बाद मैं पढ़ाई खत्म ही हो गई. तो 2016 के बाद में मेरी ग्रेजुएशन में बहुत कम परसेंट रहे. सेल्स का अभी है प्रेशर एसबीआई में? सेल्स बिल्कुल है. क्रॉस सेलिंग इज देयर. इफ यू आर बीमा बेचते हो? बीमा बेचते हो? बीमा जो मेरी इंटर्नशिप थी वही मैम मैंने लाइसेंस एसबीआई लाइफ में करी थी. डीसीआरसी के पूरे रिकॉर्ड में मैम किसी ने भी जो ये स्टेट लेवल सॉरी नेशनल लेवल का बैंक है इसमें नहीं कर पाए कोई भी. अरे वाह. इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाते ही नहीं है. अरे वाह. तो मैंने और हम दोनों ने मिलके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस में इंटर्नशिप कंप्लीट करी थी. अरे वाह, ग्रेट. मेरे तो 2006 में बैठी थी तो वो ही नहीं हो पाया था कि वो उसके वो ना ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन, तो अपन ने तो तभी बोल दिया था कि अपना नहीं हो सकता. आज ही मैम मुझे आरबीआई बुलाया था, क्योंकि कल बुलाया था, कल मेल आया था, आज जाके आया हूँ. बिकॉज ऑफ जयपुर से जो चूरू से जो ब्रांच है जिसमें ब्रांच में रहा हूँ, वहाँ कुछ नकली नोट ले लिए थे मैंने कैश पे बैठ के. अरे वाह. तो उसके लिए नोटिस आया हुआ था. दिस इज योर फर्स्ट क्लास ऑफ बैंकिंग? नो मैम, आई टुक दिस क्लास ओनली ट्वाइस और थ्राइस. अच्छा, ट्वाइस. डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आता है? रिलेट कर पाते हो? आप जो भी बोलते हो टोटल समझ में आता है. कई बार कुछ ऐसा लगता है कि यार डाउट केस लगता है, बट ड्यू टू माय लोकेशन आई कुडंट स्पीक. अभी मैं कैसे ना कैसे भाग के बाइक चला के सीधा फ्लैट पे मैं बात तो करनी है आज मैडम से. नहीं युवराज, इट्स सो हैप्पी. यू नो आई ऑलवेज बिलीव इन इंटरेक्शन, क्योंकि पढ़ना मॉड्यूल तो ये लोग आप भी पढ़ लेंगे. आई एम देयर टू गिव यू अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. व्हाट यू आर टेलिंग ना मैम, जो भी आप बता रहे हो ना वो इम्पोर्टेंट है ना, कि ये जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो ये इम्पोर्टेंट नहीं आएगा. जो आप बता रहे हो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसमें मजा आता है पढ़ने में. सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जो बताया कि 2 लाख रुपए वो ले जाता है, तो मैं फोन करती हूँ आप आइए. अक्सर मैम फ्रेशर क्लास में ऐसा होता है, हो गया 10,000 रुपए लेने आए और 2,000 रुपए के 11 नोट दे दिए, 2,000 रुपए गए. अब रात को शाम को नहीं, मैं तो राजसी थी. अपन ने तो 2,50,000 अपन हजारों में तो बात ही नहीं की ना. मतलब छोटे मोटे अमाउंट में बात नहीं करी, छोटे मोटे अमाउंट पे नहीं बात की हमने तो. एकदम एकदम बढ़िया से. एक हेड कैशियर थे हमारे विद्याधर गोयल, तो ही वाज टोटली कंफ्यूज. उनको कैश ऑफिसर बिना रखा था. तो व्हाट हैपेंड विद हिम के वो उन्होंने उनकी डेली कोई ना कोई फर्क आता था. फर्क में आप समझ रहे हो, जैसे वो आता था, डिफरेंस आता था. तो एक दिन सर के ब्रांच मैनेजर के पास मैं बैठा था, इतने में कैशियर सर आए, बोले सर 20 लाख का फर्क आ रहा है.
तो ताज मैनेजर बोलता है मरे नहीं आप 20 लाख का फर्क देख के, ये पैसे आपके लगने हैं, आपको पता नहीं। तो मैम बैंकिंग में बहुत मजा आता है। अभी ये सारे स्टूडेंट है ना, मैं सारे दोस्तों को भी बोलना चाहूंगा, एमबीए के बाद में बहुत अच्छे स्कोप है गवर्नमेंट में। एज अ प्राइवेट सर्वेंट बहुत अच्छे स्कोप है। 3 साल 4 साल के लिए बैंक लेती है एसबीआई, और अगर बच्चा इंटेलिजेंट है, अच्छा है, तो फिर वो छोड़ती नहीं है, फिर वो उसको ऑन रोल बेसिस गवर्नमेंट सर्वेंट बना लेती है अपने अंदर, और अच्छी पोस्ट मिलती है एसओ की, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, इफ ही हैज और शी हैज डन एमबीए फ्रॉम फाइनेंस मार्केटिंग और ओके ऐसो की तो मैम अभी निकली थी कुछ साल में 3 बार निकलती है, और बहुत सारी जॉब है। बस ये प्रेशर है, लेकिन अपन एमबीए किए हुए तो अपने को प्रेशर झेलना आना चाहिए। चलो मजा अच्छा मैम एक बात और बताऊंगा मैम, जिन दिन से भी बैंक मैनेजरों से वो पाला पड़ा ना मैम, जिन जिन से भी बैंक मैनेजरों से भी पाला पड़ा ना मैम, तो मैम मैं कुछ ऐसा नहीं कहूंगा कि एसएसटी वाले ऐसे हैं, लेकिन वो एसएसटी पास आउट थे तो ये था। अभी ये छोड़ देते हैं डिस्कशन कौन कैसा है, आगे चलते हैं। मेरे को मेरे 6 बजे क्लास में पढ़ाई कर दूंगी मैं। अच्छा ठीक है मैम, ओके मैम, बाद में बात करेंगे। पहले युवराज, पहले मैं वीडियो शेयर करूंगी, नेक्स्ट मॉड्यूल पढ़ाऊंगी, लास्ट के 10 मिनट में हम लोग नहीं युवराज में पढ़ाने नहीं दूंगी, बस अब करो। यस संतति, मैं भूल गई दैट कैडबरी रिलीजिंग नथिंग कॉइन, कैन एनीवन नोज अबाउट दैट? यस, इट वाज अ न्यूज, और यस्टरडे ओनली आई केम टू नो अबाउट दिस, और इस पे मुझे खुद को बहुत आई एम वेरी ईगर टू नो दिस, बिकॉज हेयर कस्टमर विल गेट इन्वेस्टमेंट, उसका सेविंग भी होगा, उसका मनी भी मल्टीप्लाई होगा, एंड देयर आर नो एम्प्लॉइज, नथिंग। कम ऑन। यस मैम Yes, it's thank you for reminding me this. This is this news I come across yesterday only. Nothing coin. I need to explain this again. Yeah, Divya, I'll just share this with you, baby. Just a second, बच्चा। मैंने ना ये कल ही पढ़ा। I was traveling yesterday, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा, what is this nothing coin? Just a second. Just a second. Nothing coin. देखो ना, nothing coin. Okay, just a second. Nothing. It's a nothing coin bank, Divya. Beta. Yes, see, I'll tell you. And in fact, I'm sharing with you. Okay. Okay. So it is basically by Cadbury. Yes, Cadbury. Yes ma'am, Cadbury. Yes, Cadbury, and this I'm sharing, and it's Santati, very important news, and I'm sharing the link. Please, everyone, go through it. It's a very important. Thanks, Santati, for reminding me this. It's a very good news, and it's a very important news. How does the model work? We'll have to see in that. I'm also, very eager. So I'll study by my own. I'll just explore how they work, and then we'll have a discussion. Meanwhile, I'm sharing you a small video next topic. मैम लेकिन मैम कोई अभी तो कोई बोर्ड बना नहीं है ना इसको रेगुलेट करने के लिए, तो अभी नहीं है। it's new, just यथार्थ। I also have to see that. ये भी कल का ही न्यूज़ है। ये सुब्रमण्यु मैम एक्चुअली कल मेरा इंटरव्यू है HDFC लाइफ इंश्योरेंस में। सो मैम बेसिकली क्या क्या चीजें प्रिपेयर, या मैम थैंक यू। एक्चुअली बेसिकली क्या क्या चीजें प्रिपेयर करना है, बस वो आप एक ओवरव्यू दे दीजिए मुझे। लाइफ इंश्योरेंस, अच्छा मैं ऐसा कर ले सुब्रमण्यु, लास्ट 10 मिनट्स विल डिस्कस दिस। फाइन मैम। ओके, जस्ट अ सेकंड, उसके बाद बात करते हैं। जस्ट आई एम शेयरिंग दिस टू यू। Hi, my name is Gokul Narayan, and I'm the lead faculty at the Asian School of Cyber. Is it audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. In this video, we're going to be talking about the concept of the banking ombudsman. This is a scheme which had been introduced by the government under the RBI in 1995. But as of lately, in 2019 itself, there have been certain amendments that have been made to the scheme, which have made this concept even more relevant today, and therefore this video. What are we going to cover in this video? What is a banking ombudsman?
Who is the banking ombudsman? When can one approach the banking ombudsman? How do I file a complaint before the banking ombudsman? Which banks are covered under this scheme? Where can I find details regarding the banking ombudsman? Is there a limit on the amount of compensation that can be claimed? And last but not the least, can one appeal from the decision of the banking ombudsman? Let's first try and understand what is the meaning of the word ombudsman. The word ombudsman is from the Swedish language. It's not an English term, but it basically means an independent authority trying to resolve disputes. By this, I mean, it's not a court, it's not an authority which is related to either of the parties in any case, but is an independent body or an authority or a person who's trying to resolve a dispute between two people. So the next question is, what is the banking ombudsman? Now, the Banking Ombudsman is an authority that has been created under the Banking Regulation Act of 1949, Section 35A. This authority was created in the year 1995 with the purpose and intention of resolving disputes between customers and banks. So, at any point of time, if a customer finds a deficiency in the service provided by the bank, they have the option now of going to an independent party created by the RBI with the sole purpose of resolving disputes between the bank and such customers. So, the Banking Ombudsman is an authority that has been created solely with the purpose of resolving disputes between customers and banks. So, when can one approach the Banking Ombudsman? I can enumerate basically three situations in which the Banking Ombudsman can be approached. One, if you've got a problem with the physical services provided by a bank at a branch, for example. Secondly, with respect to credit card or debit card frauds that happen online. And thirdly, the latest amendment that has taken place now allows you to file complaints with respect to UPI or e-wallet based transactions also. Now, how do I file a complaint before the Banking Ombudsman? Before we answer this question, you first of all need to understand how this authority has been created through the territory of India. As of today, there are 21 Banking Ombudsmen which have been created in the territory of India, basically at the state level. The latest one which has been created is in the state of Jammu and Kashmir. For a list of Banking Ombudsmen, their addresses, email IDs and telephone numbers, please refer to the link provided in the caption below. Once you've ascertained the Banking Ombudsman and their location, you secondly have to find out where the complaint is originating from. And this changes according to the nature of the complaint. What do I mean by that? Firstly, if you've got a complaint against a branch, then you'll have to find out the physical location of that branch and accordingly file a complaint. Basically, in Maharashtra, there are two Banking Ombudsmen. One, which has been created for Mumbai and its suburbs. And secondly, for the rest of Maharashtra and the Goa region. So if you're a person located in Pune and you want to file a complaint against a branch in Pune, you will have to find out the Banking Ombudsman who's in charge of the Pune area and accordingly file a complaint. Secondly, if you've got a complaint to file against a credit card fraud that has happened, then the billing address of the individual against whom this fraud has happened. So for example, if this fraud has happened with me, then my billing address as provided in my application for my credit card or debit card will be the relevant location on the basis of which the Banking Ombudsman will be chosen. Thirdly, if the complaint is against an online banking service provider like an e-wallet or a UPI system, then the registered billing address of the complainant is relevant to decide the authority before whom this complaint will be filed. Now that we figured out who can file the complaint, let's figure out how to file this complaint before the Ombudsman. An aggrieved customer can go on to the RBI website, the link for which is provided in the description below, and download an application form. The application form only needs to have the details of the complainant and the nature of the complaint that he's filing, along with relevant documents. Now, this compilation can either be sent physically to the office of the Ombudsman, or you can file it or submit it through an email. Now let's address the issue of which banks or financial institutions are covered under this scheme. Now,
all private banks or public sector undertakings, financial institutions like UPI service providers and e-wallet service providers like PayPal, every banking institution registered with the RBI comes under the purview of this scheme. So where can you find information regarding the Banking Ombudsman? Although I've already provided a link in the description about the addresses of the Banking Ombudsman, if you still have questions and queries about how the Banking Ombudsman functions, what its limitations are, I will also provide a link to the FAQs on the RBI website. That should address all your questions sufficiently enough. Now let's address a few finer details. Is there a limitation or a limit on the amount of compensation that can be awarded by the Banking Ombudsman? Basically, there are two limits provided. One is where the Banking Ombudsman can give a maximum compensation of up to 1 lakh rupees. This is with respect to mental agony or trauma that has been caused to a customer because of the deficiency in services provided by the financial institution. The second one actually talks about the maximum compensation that can be given, and that has been limited to a maximum of 20 lakh rupees. Last but not the least, let's understand the appellate provisions provided under the scheme. In case you're dissatisfied with the decision passed by the Banking Ombudsman, you have the opportunity to appeal to the Deputy Governor of the RBI. This appellate provision has to be exercised within 30 days of you receiving the order from the Banking Ombudsman. Even after this, in case you're dissatisfied, the doors for the Consumer Court and the regular civil courts in India are still open to you. This is a part of the CyberFit campaign, and therefore we will be releasing a lot more videos like this. I hope you liked this video and you found it informative. In case you have any questions about the Banking Ombudsman, feel free to leave us a comment and we can discuss the same. If you like the video, give us a thumbs up and feel free to subscribe to our channel. So yes, I hope you understand this video, right? This we have already discussed. Yes, ma'am. I have a doubt, ma'am. Yes. Ma'am, they are saying that rupees 1 lakh can be compensated if you have a mental trauma. Yes, so, I have already told you mental agony, mental trauma. Yes, ma'am, so there is no define the definition of the mental trauma. No, it depends. No. It's like आप बोलते हो कि मैंने suppose I'll just give you a small example, like delay in payment of the check by the bank, right? And it's suppose it's 15 lakh rupees of check, and my position in front of another party got ruined. मेरा नाम इतना था मार्केट में, वो खराब हुआ, उसकी वजह से मुझे mental trauma हुआ. So I need 50,000 the compensation for the same. Right, so it all depends upon the evidence, the situation. Okay, there's nothing it's predefined कि mental agona किसको देंगे किसको नहीं देंगे. They'll see that exactly whether it is mental trauma वाला situation or not. According to the situation, वो अपना decision pass करेंगे. Yes, okay. Yes, and the maximum amount is 1 lakh. Yes, okay. Right, but mental agony बहुत extreme cases में जाती है. मैं ये बोल रहा था कि झूठ भी तो बोल सकते हैं कई कुछ लोग, चाहे हुआ भी ना हो मेंटल एगोनी, लेकिन बोल दे कि मुझे तो बहुत हुआ है, मेरा तो बहुत मानहानि हो गई, ये सब हो गया. See, again it depends because सबसे पहला तो conciliation या mediation वाला factor करता है banking ombudsman, right? Yes, Anand, you want to share something? हाँ मैम, मुझे यथार्थ से कुछ पूछना था. यथार्थ, आप किस कैंपस से बिलोंग कर रहे हो? NIU से. Okay. Right? Okay, Anand? Okay. Right. So, it's all, case to case they decide. और mental agony का पैसा बहुत easily नहीं जाता है. All the evidences should be there. Mental agony हुई तो मेरा psychological state ऐसा रहा, तो psychological state अगर आपने बोला तो आपकी medical reports भी होनी चाहिए कि आपकी psychology सच में प्रभावित हुई है या नहीं. Right? समझ में आया? So yes, the evidence should be there. ये था. It's not easy. ऐसे तो मैं भी बोल सकती हूँ, राम मेरे साथ तुमने ऐसा किया,
मुझे दे दो तुम 20 लाख रुपए, कम ऑन, मेंटल agony के लिए भी टेस्टिंग इज देयर, right? And if that testing is true, then it's okay, otherwise not, right? Yes, sir. Right. So I just want to see कि last next है क्या, मुझे बस मेरे को थोड़ी curiosity हो रही है कि next, और मेरे को है ना हमेशा ये होता है कि lecture 7, 8, 9, 10 अभी यूनिट 1 ही चल रहा है उनको। NI, ओहो NI हम बाद में लेंगे, NI हम अभी नहीं लेंगे, NI तो बहुत लंबा है। Just a second. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसके पहले जस्ट सेकेंड, टर्म डिपॉजिट्स। हमने टर्म डिपॉजिट्स किया था इससे पहले एक बार, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो। डू यू रिमेम्बर? No, it's negotiable instrument only. जो कॉमर्स में होंगे वो सब पढ़ चुके होंगे। वैसे मैं आपको बताऊं, NI बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, लाइक चेक बिल्स, ओके, प्रॉमिसरी नोट, और उसके अलावा क्रॉसिंग, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, इंडोर्समेंट, टाइप ऑफ इंडोर्समेंट, होल्डर कौन है, होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या है, बहुत सारा। आपके शायद ओवरव्यू है, लेकिन ओवरव्यू की जैसे कराऊंगी नहीं, ये मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूंगी, बिकॉज आई बिलीव दैट दिस इज तो प्रोसेस में तो काम बनता है, राइट? देन जस्ट अ सेकंड, फर्स्ट आई वांट टू शेयर माय थिंग इफ आई विल फाइंड, जस्ट अ सेकंड। इन्होंने टर्म डिपॉजिट्स में भी NI कर रखा है क्या? Yes, ma'am. इन्होंने गड़बड़ की हुई। टाइप ऑफ कस्टमर्स इन रिटेल बैंकिंग, आई जस्ट वांट टू सी कि ओके दे हैव कवर्ड, सो इन दिस फील्ड कवर्ड अबाउट KYC of different aspects, like type of customers and all that. So now should I start with NI, right? केवल एक आइडिया दे देती हूँ NI क्या है, ओके? और उसके बाद मैं आपको अपनी जो वीडियो याद है, you want to see my video in a coming class related to NI, Yes, or something related to us. So I had made around 3 videos, because NI it's a very, in fact 3 क्यों 4 5 वीडियोस होंगी। क्रॉसिंग की अलग से बना रखी है कि क्रॉसिंग क्या है, इंडोर्समेंट क्या है। सो इस पर हम लोग खूब सारे MCQs भी करेंगे, क्योंकि NI एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सी आई जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू एंड विल टेल यू कि हम लोग इसमें करेंगे क्या क्या। हमारी कल का क्लास का क्या शेड्यूल है? एनीबॉडी हैज आइडिया? लेट मी चेक। सी हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, मैं आपको जस्ट ओवरव्यू देती हूँ। NI 1881, वी ऑल नो दैट, ठीक है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स भी बेसिकली 2 में बांटा गया है। जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ओके बाय स्टेट, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय जो भी ये बात, जैसे हुंडीज होते थे, रेलवे रिसीट्स होते थे, ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स थे। लेकिन हम बेसिकली 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, और वो है कौन कौन से? चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। क्या आपने पढ़ा है? प्रॉमिसरी नोट इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, और बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, जहां मेकर होता है, पेई होता है, ड्रॉर होता है, ड्रॉई होता है। हैव यू हर्ड? कभी पढ़ा है ये सब? 12th में पढ़ा होगा कॉमर्स में, राइट? राइट। जैसे रेस राखी, नहीं पढ़े मैम। नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, अब पढ़ेंगे। सो आई स्टार्ट विद अ वेरी स्क्रैच, ठीक है? नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी नोस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल? जस्ट लिटरल मीनिंग, अंग्रेजी, व्हाट इज नेगोशिएबल? It is not in which we can. It could be like higher or lower. Okay, right? Or
Can it also means the transferability? I can transfer from one party Yes, to ma'am. another to another. अच्छा, दो चीजें बड़ी important है. Can anybody tell me who is order and who is bearer? NI में ही आता है. दो तरह के checks होते हैं ना, order मैम और bearer. बेरर जिसको पे करना होता है और ऑर्डर इसको लेना होता है. और थोड़ा सा इसको रिफाइन करो अगर मैम इंटरव्यू में ऑर्डर पूछा ऑर्डर गया. का मतलब जिसको ऑर्डर लिखा होगा तो बस उसी को ही मिल पाएगा, और बेरर का मतलब है कि वो किसी के पास भी फिजिकल उसका अकोमोडेशन होगा चेक का, तो वो बेरर को मिल जाएगा. बिल्कुल सही. लेकिन जब आप इंटरव्यू में बोलेंगे तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि जिसको मिल जाएगा, जिसका नाम लिखा होगा. नो. लेकिन जो तुम बोल रहे हो ना, होल्डर मैम. नहीं, थोड़ा सा रिफाइन करती हूँ. दो बातें रट लेना, दिमाग में डाल लेना, समझ लेना. बेरर चेक्स जो होते हैं वो मेरली डिलीवरी से यू आर एबल टू इनकैश इट बाय डिलीवरी, राइट? डिलीवरी आप समझ रहे हो ना, जिसको मिला उसका, राइट? एंड द ऑर्डर इज फर्स्ट देयर इज अ एंडोर्समेंट एंड देन डिलीवरी. I've endorsed this check in favor of Yatharth and didn't deliver it, right? Order. I've just delivered it to anyone has find it. It is bearer. कभी चेक निकालना आपने, वो काट के कहीं पर करते हैं, काट के ऑर्डर, राइट? ऑर्डर बेरर बहुत समझना इंपॉर्टेंट है. अभी भी किसी को नहीं समझ में आया हो, प्लीज रेज योर हैंड और प्लीज आस्क मी. ऑर्डर बेरर बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं है इसमें मॉड्यूल में. ऑर्डर तो समझ में आ रहा है, बट एक और क्या बोल रही हैं? बेरर बेटा, बेरर, BEARER, बेरर चेक. जिसको मिल गया उसका. सेल्फ के चेक्स होते हैं ना, गिर गया, राइट? सेल्फ का चेक है, कोई इनकैश कराने के लिए जा रहा था, रास्ते में गिर गया, जिसका मिल गया उसकी यश. मैम वी कैन यूज द वर्ड एज पोजीशन ना. व्हाट? मैम वी कैन यूज अ वर्ड एज पोजीशन फॉर बेयरर चेक. अगर जिसके पास पोजीशन हो उस चेक की तो वो यस, पोजीशन ना. पोजीशन. Yes, you may use. Possession is also important. Okay? समझ में आया? राखी, everyone, यथार्थ, जितेंद्र, शुभम, आनंद, Yes, right? मैम तो इसमें सिग्नेचर एंड क्लाइंट मैटर नहीं करता होगा ना? कभी सेल्फ चेक इनकैश कराया है राखी? पीछे दो साइन कोई करके दे देता है, आप जाना सेल्फ चेक पहले इनकैश कराना, देखना कैसे होता है. मैम सेल्फ चेक तो बोलो. मैम जैसे कि कोई अपना चेक पे सिग्नेचर करके चेक देते थे, जैसे वैसे हमारा सैलरी मिलता था मैम, तो हमारे डॉक्टर जो थे वो सिग्नेचर करके दे देते थे और हम जाकर. पता है मैं आपको बताऊं, लोग बाग कर देते हैं एक सिग्नेचर पे ही दो, मतलब चेक के पीछे ना दो साइन कर देते हैं, वो गलत है. वो इसलिए नहीं होता है. पहले एंटर पर एक साइन होते हैं, फिर वेरीफायर पे एक साइन होते हैं. नॉर्मली लोग बाग दो साइन करके दे देते हैं, वो गलत है. कोई रिलेवेंस ही नहीं है. वो इसलिए होता है कि पहले साइन होने के बाद वेरीफायर ने दूसरा साइन अपने सामने ही कराया, उस तो पता चलता है ये वही पर्सन है जिसने पहला साइन किया था. मान लो मैं दोनों साइन करके दे दिया और सेल्फ का कोई इनकैश बीच में करा कर ले गया. ऐसा हो चुका है एक बार ब्रांच में, राइट? यथार्थ, यू आर रेजिंग योर हैंड बेटा. मैम आई वाज नॉट रेजिंग माय हैंड. अच्छा, नहीं, इट्स युवराज. आई होप युवराज. मैम यू हैव क्लियर्ड दैट. कौन सा? वो दो साइन वाला? हाँ, दो साइन. मैं ही पूछने वाला था, दो साइन क्यों करवाते हैं? नहीं, बहुत होशियार है वो. हाँ, वो इसीलिए कराया जाता है. पता है इसमें भी मेरे साथ हुआ है. मैं बोल रही हूँ ना, बैंक में सच बोल रही हूँ. मैं तो बुक लिखूंगी अब, फ्री हो जाऊं. मैं फ्री नहीं हो पा रही कि 1 decade in a बैंक वो a bad story और a good story और a thriller ही हुआ है मेरे साथ. तो भाई साहब, एक चेक ब्रांच में लॉस्ट हो गया, सेल्फ का चेक था, चोरी जिसको बोलते, मतलब गिर गया किसी से, एंट्री डल गई वहां पर, सामने एंटर हो गई. वेरीफायर के लिए जिससे चोरी हुआ वो लेकर आ गया, पेमेंट करो, है ना? पेमेंट आया भी किसके पास? डॉक्टर पवनदीप कौर बिंद्रा. आना ही था, क्योंकि कुछ भी बढ़िया हो एकदम धमाकेदार, वो अपनी लाइफ में ही होना है. जैसे ही एंट्री डाली वो चेक स्टॉप. मैंने कहा ये क्या हुआ? मैंने कहा चेक स्टॉप बाय द ड्रॉअर. मैंने कहा कुछ गड़बड़ लग रही है बॉस. उठाकर देखा, उसको कस्टमर ही नहीं सामने, वो जा चुका था. मैंने कहा कस्टमर कहाँ गया? क्योंकि भाग चुका था. उसको पता लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है बॉस, क्योंकि इतने में ओरिजिनल ओनर भी उस ब्रांच में
जिसने उठाया वो भी उस ब्रांच पे, और उस ब्रांच के साथ हमारा गार्ड ही था, पुराना गार्ड साहब थे। उनको बहुत कुछ पता था कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, तो वो भी कहीं पर इन्वॉल्व थे इस पर्सन के साथ। बाद में उनको भी हटा दिया गया था। लेकिन मैं यही बोलती रही, मैं कहा गार्ड साहब मेरे काउंटर पे क्यों भेजते हो यार, आपको लगता है सबसे ज्यादा चोट इसके साथ ही होती है तो इसके साथ ही कराओ। सो ये लॉजिक होता है 2 साइन का, लेकिन लोग बाग उसको भी मजाक बना रखा है। हाँ चलो भैया 2 साइन है पहले के, दे दो पेमेंट। ये नहीं होता, इसका लॉजिक होता है, आप समझे? इज इट क्लियर? हर चीज का लॉजिक है, हर चीज का सिस्टम बनाया हुआ है। सिस्टम ये कहता है कि हर चेक को आप यूवी लैंप में चेक करोगे, राइट? हम क्या करते हैं, एक साथ क्लियरिंग के चेक लेते हैं, ठाक 100 चेक आए, फिर उसके बाद हम स्टैंप मारते हैं, एक साथ स्टैंप मारते गए। कौन है, टाइम ही नहीं है। वो तो देखो सीधी सी बात है, अगर जिसको चोट होनी है होनी है, सेम एज दैट। जो दिन आपका नहीं है वो नहीं है, राइट? तो हर चीज का लॉजिक होता है बैंक में। और ये भी बिल्कुल ठीक है कि अगर आप गाइडलाइंस के साथ काम करोगे ना तो काम खत्म ही नहीं हो पाएगा। इट इज ऑल्सो ट्रू, वेरी ट्रू। सिंपल है, जब तक चल रहा है तो इट्स ओके। समझ में आया? ऑर्डर बेरर और पीछे 2 साइन का लॉजिक, राइट? यस मैम पर सेल्फ में तो मतलब जैसे SBI में मैं जाता हूँ तो वो कहते हैं कि सेल्फ में तो आपको मिलेगा नहीं, और उनको ओनर को ही आना पड़ेगा जिसका अकाउंट है। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है मैम। जैसे मेरे पापा मुझे देते हैं चेक, तो नहीं, बिल्कुल एक बार ले सकते हो आप। सेल्फ का डाला था तो वो कह रहे हैं कि अपने पापा को बुला के लाओ। चेक का टाइप देखना होता है मैंने वहाँ पे, चेक कौन सा है, ऑर्डर है। मैम मतलब अकाउंट होल्डर ही ले पाते हैं। युवराज क्या हो रहा है तुम्हारे राज में? ये है SBI में? मैम ऐसा तो नहीं है, मेरे राज में तो नहीं हुआ। मैं माफ कर मैम वो कहते हैं कि ओनर को बुला के लाओ अकाउंट नहीं, ऐसा होल्डर को। कुछ नहीं होता। तुम युवराज से बात करा दिया करो, युवराज नंबर शेयर करो SBI में, कोई भी दिक्कत आएगी ना, युवराज इज देयर टू टेक केयर, है ना? वो तो तब आता है कि बुला कर लाओ जब जैसे हमारे भी होता है कि सेविंग्स में 50,000 के ऊपर हम कॉल करते हैं, करंट अकाउंट में हम 25,000 के ऊपर की कंफर्मेशन करते हैं। तो मैम अब मेरा नाम लिख के भी देते हैं अब पापा कि विपिन धांगा लिखो तभी देंगे चेक। तो भावेश ने CEO बना दिया SBI का। भावेश ने बोलते रहता है, ये मजाक उड़ाता है मैडम मेरा बहुत। मजाक क्या होता है? ऐसे मेरे साथ भी मजाक उड़ाते थे। कम ऑन, जिसका मजाक उड़ता है ना वही सबसे ज्यादा तरक्की करता है। मेरे से सब मजाक उड़ाते थे, कम ऑन ये बोलती नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मुझे लगता है कि मैं इट्स ओके, कम ऑन, टेक फन। मजाक को मजाक में लेना चाहिए, ठीक है? सो इट्स ओके, इट्स गुड, राइट? आगे चलते हैं। सो रिक्विजिट्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट का मतलब होता है इट्स एन अनकंडीशनल प्रॉमिस, राइट? अनकंडीशनल, दैट आई प्रॉमिस टू पे 3,000 rupees after my daughter's marriage. Is it promissory note? No, because it is conditional, right? Okay, ठीक है? The money to be paid must be certain. अब certain क्या होता है? Certain ये होता है, right? Certain ये होता है, कैसे करें? Donate. अरे यार हमारा, yes. Suppose this is a check. I hope you are able to see. यहाँ पर लिखते हैं पे, यहाँ पर होता है अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन फिगर्स, डेट, साइन, isn't it? होता है? समझ में आया? यही होती है ना चीजें, 1 2 3 4 5। और यहाँ पर होता है ओपन है या क्लोज है, ठीक है? सपोज ऐसा कुछ चेक है अकाउंट पे, तो बोलते हैं कि ये सब चीजें सर्टेन होनी चाहिए। ये और ये 1 2 3 4 5 थिंग्स शुड बी सर्टेन। इट मीन्स पे का नाम होना चाहिए, सपोज पे टू युवराज, राइट? सो इट इज सर्टेन एंड द अमाउंट मस्ट बी, मतलब नाम, वर्ड्स एंड फिगर 50,000 एंड FIFTY 50,000। सिग्नेचर्स वही जो खाते में हो। डेट मस्ट नॉट बी पोस्ट डेटेड, मस्ट नॉट बी, द चेक शुड नॉट बी स्टेल। स्टेल क्या होता है? व्हाट इज स्टेल? मैम 3 महीने के बाद अगर चेक 3 महीने के बाद अगर पे होता है, ठीक है? इट शुड नॉट बी लाइक दैट। क्या ये पास होगा 2021.11.11? क्या ये चेक पास हो सकता है? यस मैम, बिल्कुल हो सकता है।
क्या हिंदी की डेट पास हो सकती है? किसकी डेट? सॉरी मैम, हिंदी में लिखा हो, हिंदी में। यस मैम, हो जाएगा। बिल्कुल हो जाता है। ओके, क्या इस तरह से पास हो सकती है? November 11, 2021। यस मैम। मैम हो जाएगा। मैम, हेलो मैम। यस अंकल। मैम और कोई रीजनल लैंग्वेज में हुआ तो? See, I'm telling you, हिंदी के लिए तो it's allowed. Okay, as far as मैंने देखे भी हैं चेक्स, और मैंने कुछ चीजें ऐसे देखे हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक में क्लियरिंग के चेक्स आते थे पंजाबी में, गुरमुखी में, तो वो भी अलाउड होते हैं। मैम आपको तो फिर आती है, फिर तो आपका तो सब कुछ समझ में आ जाता होगा, लेकिन जो क्लियरिंग करता है अगर वो ना हो पंजाबी तो नहीं तो इट्स ओके ना, कम ऑन, दे हैव देयर ट्रांसलेटर्स होते हैं, वो चेक अप्रूवल के लिए भेजा जाता है सेंट्रल ऑफिस। ओके। और फिर वहां से अप्रूवल आता है, उस पर डिपेंड करता है, राइट? ओके, सो इसका मतलब होता है सर्टेन कि सब कुछ ठीक होना चाहिए। अब इसको जरा हटाया जाए, बहुत ही सुंदर। 2 मिनट, अरे हाँ ठीक है। इट मस्ट बी पेबल टू ऑर्डर और बेयरर। ऑर्डर बेयरर मैं बता चुकी हूँ, इसीलिए पहले बता दिया था क्योंकि आने वाला है। इट शुड बी साइन बाय द मेकर। सी, this is a promissory note. I promise to pay Mr. Smith the sum of rupees 6,000 only, together with an interest of 9% per annum for value receipt. It's a promissory note, right? Demand in usance promissory note. Take it. Just a second. Yes, 2 minutes. Yes, beta, tell me. यस मैम। मैम जो बैंक नोट है उसे प्रोमिसरी नोट भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि उसपे लिखा रहता है आई प्रॉमिस टू कि मैं धारक को वचन देता हूँ। हाँ, मैं धारक को वचन देता हूँ। ये करेंसी नोट्स पे भी यू विल फाइंड सम सॉर्ट ऑफ अ लैंग्वेज। यस मैम। कि मैं 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। यस मैम। Yes? मैम Oh, वो yeah. सब करेंसी नोट है कि बैंक नोट? यस, सेम ही हो। See, basically, promissory notes are there, right? And you may consider this as a promissory note, right? Because जहाँ पर ये language आ जाता है that I promise to pay, so it's a promissory note, right? Okay? Yes, ma'am. ठीक है. So demand promissory note, whenever the creditor demand payments, usance is yes. Ma'am, actually, when we give some amount on the rent, like to someone, it is also written over there. Na, I give a promise to pay this amount to you back. Yeah. लेकिन अगर उसमें conditions नहीं होने चाहिए. If they are backed by conditions, then they are not promissory note. No, ma'am. The thing is that slide you have shown, it is written over there. It's as it is. Yeah, but there is no condition. See in this, जैसे rent agreement की हम लोग बात करते हैं तो उसमें conditions होते हैं बेटे कीर्ति. Okay, ma'am. Conditions नहीं होने चाहिए बॉस. अब इसमें कहीं पर भी condition नहीं है कि I promise to pay this when it rains. I promise to pay when I got married. I promise to pay when I will get to return to Mumbai. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. तो मैम वो जो एक वो होता है certificate, it is also promissory note. Yes, if it is not backed by conditions. If terms and conditions are there, it's not considered as a promissory note, right? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome, beta. What is usance? Usance means time, term. So it means if the promise is to pay certain after a period, a month, कि मैं आपको 1 महीने बाद देता हूँ या 1 साल बाद देता हूँ या 2 महीने बाद देता हूँ या इस फ्यूचर डेट में देता हूँ, that is known as a usance promissory note. Right? Usance बहुत सारी चीजों में काम आता है. जब हम export bills की बात करते हैं ना, remittance की, तब भी ये काम आता है. See, 1 month after, this is a usance. I promise to pay.
This is a usance because you're getting a term. Okay. So now, bill of exchange. A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order to pay. Right? So there is a difference between promissory note and bill of exchange also. We'll see to this. Okay? To order or the bearer of the goods. और इसमें भी वही है कि certain होना चाहिए, and there are three parties, drawer, drawee and pay. Right? समझ में आया? ठीक है. और ये देखिए, ये ऐसा दिखता है. 2 months after, pay to Champak Lal a sum of rupees 15,000 for value received. This is usance. अब ये differences है. इन differences पे हम लोग कल बात करेंगे. तो differences पर ही रोकती हूँ. अच्छा, come on, switch on your cameras, everyone. युवराज is making है बिल्कुल बढ़िया से. Always. विपिन, आनंद, नवीन का है? मैम इतनी छोड़े हैं मैम बाल के. अच्छा, नवीन. हेलो भावेश.